invite Farooq Tarapur to start the session. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a flag bearer on this journey with a mission: Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen from him, guys. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I just hope that you had your early dinner, done some exercise, and because we are going to talk about carbs today, and I hope that you had very little carbs. Now, most people get very confused with carbs. They take extreme approaches. Either they're eating too much carbs or they're eating too little carbs. Balance is the most important criteria for good holistic health. You need to find a way to balance the carbs. You need the carbs. But if you have got to make an error in the amount of carbs that you're consuming, it is better that you make the error in the morning rather than, in the morning breakfast rather than for dinner. Because if you have a little bit of more carbs in the morning, you need that energy, during the day. But if you have it during night, where you really don't need the energy, that gets put onto your body as, fat. Now, when we talk about carbs, now don't get me wrong, that doesn't mean that you need to eat a lot of carbs in the morning for breakfast. It is just that we are so focused in ensuring that 50% of your morning breakfast should consist of protein. So, and there should be 25% of carbs. So let's say it goes from 25 to 30 or 35. It's not going to be that damaging as compared to having the same amount of carbs, for dinner. Also, try and not mix too many carbs together, like eating roti and rice at the same time. It just doesn't make sense. You just, adding fuel to the fire. When we talk about carbs, there is one Ayurveda herb, okay, which comes to my mind, and that is Madhunashni. Now, Madhunashni is such a fantastic substance that, nature has actually given it to us in order to ensure that our, blood sugar remains under control. So try and figure out, how you can use that amazing stuff of Madhunashni and how you can use it to control. There are a lot of people who make a lot of mistakes in consuming Madhunashni. Even though they are consuming it, they are not consuming it in the right fashion. The true value of Madhunashni comes if you take it like, around, say, 30 minutes before your meal. And you will notice that the blood sugar really remains under control. Today, you're going to be listening from somebody who was the queen of carbs. And the day she decided to go from queen of carbs to a pauper of carbs, she turned her health around. So listen to her because she has a lot of knowledge on this subject. And that knowledge will have a tremendous impact on your holistic health. So over to you, Deepika. Yeah, Farooq, because of some reason Deepika is not there, so I'll be presenting the. Hello. So, okay, then in that case, Manoj, you turned it over to Manoj. Thank you, Farooq. So, am I audible? Yes, you are. You are. Okay. Thank you very much, Farooq. Let me share the slide. Okay. I think everybody can see the slide.
Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो वेलकम एवरीवन, आ जाइए बेस्ट ऑफ हेल्थ बेस्ट ऑफ फिटनेस के अगले एपिसोड में। और आज की जो बात है दैट इज ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड डाइटरी फाइबर। कार्बोहाइड्रेट पिछले कुछ दिनों से एक विलन बना हुआ है ना, लेकिन ये ऐसा विलन है जो जिसके बगैर हम रह भी नहीं सकते। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसको खाना क्यों ज़रूरी है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस तरह से खाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। तो अगली स्लाइड में चलते हैं और इस स्लाइड में बेसिकली आपको ये समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट की बात क्यों करते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये उस फैमिली में से है, 3 चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की फैमिली में से, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है ना। दिन भर काम करने की ताकत, बात करने की ताकत, दिमाग को कंटिन्यू चालू रखने की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है और ये बहुत ज़रूरी है ना। इससे ये पावर हाउस है हमारे शरीर के लिए। अगर हम ये सोचेंगे हम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे और फिर भी हम रह जाएंगे, शायद 1-2 दिन, 4-5 दिन, कुछ समय तक आप रह पाओ, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको। ओके, कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, आगे आपको बात करेंगे। तो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का अगर आप देखेंगे ब्लड ग्लूकोज पे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा ख़राब भी, इसको ख़राब माना जाता है ना। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो एक ग्रीन कलर की लाइन है जो कार्बोहाइड्रेट है, एक सेंटर में डार्क ग्रे है जो प्रोटीन है और एक लाइट ग्रे है सबसे नीचे जो फैट है। बेसिकली ये बता रहा है ये कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं इन तीनों में से, तो कितने स्पीड से ये हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जाता है और वहां से फिर सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है। कार्बोहाइड्रेट एकदम तेजी से अंदर घुसता है और फिर तेजी से बाहर भी निकल जाता है, इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद फिर कुछ समय के बाद वापस से भूख लग जाएगी। प्रोटीन को अगर आप ध्यान देंगे तो ये आहिस्ता 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 शरीर में जाता है और फिर आहिस्ता 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 शरीर से बाहर निकलता है। उसी तरह से फैट है, फैट और भी स्लो आपके शरीर में जाता है, इसीलिए कहा जाता है फैट को बर्न करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है, और फिर उसी तरह से उसका इफेक्ट आस्ते 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 खत्म होता है। तो ये कार्ब का इफेक्ट है हमारे बॉडी पे खाने के बाद। अगर हम ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है कार्बन और दूसरा हाइड्रा या फिर पानी, है ना। तो पानी में 2 चीज़ होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये कंपोज्ड है 3 चीज़ का, कंपाउंड है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये हमारे शरीर के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, मतलब इससे यही चीज़ हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है, और यही चीज़ हमारे बॉडी को एनर्जी भी देता है ज़्यादा, है ना। ब्रेन और मसल ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली ब्रेन हमारा बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा शेयर करता हूँ। जब मैंने पूरा कार्ब अपने लाइफ से निकाला था कुछ समय के लिए, तो मैंने ये महसूस किया आस्ते आस्ते कभी कभी कि अगर मैं बहुत देर तक एक जगह बैठे रहूं और फिर अचानक उठ जाऊं, तो कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं एकदम चक्कर आ रहा है मुझे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि इट इज़ बिकॉज मैं कार्ब नहीं खा रहा था बिल्कुल भी। तो हमारे जो ब्रेन को एनर्जी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है हमारी एनर्जी, वहाँ पर नहीं पहुँच रही थी जितना उसको चाहिए। मसल आपको काम करने के लिए ताकत देता है, इसीलिए भी उसको आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। तो कार्ब हमारा प्राइमरी सोर्स है। कार्ब में बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट होते हैं, शुगर होता है, फाइबर होता है और स्टार्च होता है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे और बात करेंगे। ये हमारे बॉडी पे फ्यूल किस तरह से बनता है और किस तरह से यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका।
ये कहा जाता है कि अगर आप बात को पूरी तरह से समझ जाओ तो ऐसा है कि अगर आपके बिल्डिंग की हर एक ईंट अगर सही सलामत रही तो आपकी बिल्डिंग सही सलामत रहेगी। उसी तरह से अगर आपके शरीर का हर एक सेल अगर सही सलामत है तो आपका शरीर को कुछ नहीं हो सकता। तो होता यह है कि सेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हम जो भी खाते हैं, और जब हम खाने की बात करते हैं तो हम खाने में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जब भी हम जो भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर डालते हैं, उस न्यूट्रिशन ने सेल तक जाना ही जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो आपका बेसिकली वो खा के मतलब नहीं। फिर आपने सिर्फ अपने 1.5-2 इंच की जो आपकी जबान है उसके लिए खाया है, सिर्फ टेस्ट के लिए खाया है, आपने न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाया है। ओके, तो हर शरीर में हर सेल में अगर आपकी एनर्जी जाएगी, मतलब शरीर हर सेल में अगर आपका न्यूट्रिएंट जाएगा तब जाके आपका शरीर अच्छी तरह से काम करेगा। तो किस तरह से जाता है हर सेल में न्यूट्रिएंट? आप देखेंगे जब आपने खाना खाया तो आपके पेट पे गया, वहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस चालू हुआ। डाइजेशन वहाँ से प्रोसेस चालू होता है तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके वेसल्स में जाने लग जाते हैं, खून के साथ मिक्स होकर जाने लगते हैं। और जब वहाँ खून में जाते हैं तो खून तो एक नदी है एक हिसाब से, तो हर एक न्यूट्रिएंट को ले जाने के लिए एक जहाज भी है, एक नाव भी है। तो उसी तरह से जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको ले जाने के लिए हर सेल तक जो काम करता है वो करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन उसको पकड़ता है और फिर उसे ले जाता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर वो प्रोसेस होके फिर उसकी एनर्जी बनती है, और जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और फिर हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो और अगर समझो हमने ज़्यादा शुगर खा लिया है ना, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कैलोरी खा ली, तो फिर क्या होगा? ज़्यादा कैलोरी खा लिया तो अंदर तक नहीं जाएगा सेल तक, फिर वो खून में घूमते रहेगा, और फिर खून में घूमने के बाद वो क्या करेगा, अल्टीमेटली जाके कहीं उसने बैठना है तो फैट के रूप में कन्वर्ट होके वो जाके बैठ जाएगा कहीं ना कहीं, और स्टार्ट होता है लीवर से। और इसीलिए आप देखोगे कि लोग भले ही मोटे ना हो, उनको फैटी लीवर पहले दिखता है। और अगर आपने कम खाया एनर्जी, ग्लूकोज या शुगर, तो क्या होगा, आपके हर सेल तक जाएगा नहीं, और फिर आपको ताकत नहीं लगेगा और आपको कमजोरी महसूस होगी। तो ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका शक्कर हो गया, आपका कोई कोल्ड ड्रिंक हो गया जिसके अंदर शक्कर मिला हुआ है ना, वो प्योर शुगर है, उसको नाम ही शुगर दिया गया सीधा, है ना, उसके अंदर और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या है, स्टार्च होता है जो कन्वर्ट होता है बाद में शुगर पे, और फाइबर होता है, ये सही काम करता है स्टार्च के साथ में काम करने के लिए। ओके, अभी हम थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं, कॉम्प्लेक्स और स्टार्च के बारे में। आप इस तरह से यहाँ देखिए, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल से बनते हैं। मतलब इसको तोड़ने के लिए टाइम लगता है, इसमें फाइबर ऐड है इसलिए। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो शॉर्ट चेन शुगर से बने होते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कार्बोहाइड्रेट मिक्स है, तो सॉरी फाइबर मिक्स है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। सिंपल सिर्फ शुगर है तो डाइजेस्ट क्विकली हो जाता है। कॉम्प्लेक्स क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिक्स है, तो क्योंकि डाइजेस्ट स्लो हो रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड वेसल्स में शुगर को रिलीज करता है, जबकि सिंपल जो है वो तुरंत अपने ब्लड शुगर में चले जाता है। इसलिए कभी आप देखो कि अगर आपको लगता है आप थके हुए और आपने कोल्ड ड्रिंक पे, आपको तुरंत एनर्जी आ जाती है, टाइम भी नहीं लगता। ओके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में फाइबर है जो डाइजेस्ट होने को टाइम लेता है, इसलिए आपको बहुत देर तक ऐसा लगता है कि आपका पेट फुल है। वहीं पर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो आपको तुरंत ऐसा लगेगा कुछ देर के बाद कि आपको फिर भूख लग गई। कॉम्प्लेक्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो कम प्रोसेस होता है, और शुगर जो है वो ज़्यादा प्रोसेस होता है, इसीलिए वो सिर्फ शुगर है और कुछ नहीं है। और शुगर बेसिकली कहाँ से आता है, किसी ना किसी हमारे फूड से निकलता है वो, है ना। तो उसको फूड को उस फूड को प्रोसेस करके उसमें सिर्फ शुगर निकाल दिया और उसको बना दिया गया है। कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा डायरेक्टरी फाइबर होता है जो आपके
पेट के लिए बहुत फायदा है, फाइबर के ऊपर हम और ज़्यादा बात करेंगे आगे, ओके। जबकि सिंपल के अंदर डाइटरी फाइबर है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्योंकि साथ में फाइबर है, तो ये आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है बहुत देर तक, काफ़ी देर तक, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आहिस्ते आहिस्ते आते जा रही है। जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी तुरंत आएगी, तुरंत जाएगी, थोड़ी देर के बाद ही आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें और सारी हैं, तो इसलिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भी होते हैं, जबकि इसके अंदर बिल्कुल नहीं, ना के बराबर होते हैं सिंपल में। कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल हैं जैसे कैरेट हो गया, होल ग्रेन ब्रेड हो गया, बनाना हो गया, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गया। जबकि सिंपल शुगर का आपका एग्जांपल हो सकता है एरिटेटेड ड्रिंक्स, सोडा, मतलब जैसे एरिटेटेड ड्रिंक्स, प्लेन सोडा नहीं, प्लेन सोडा में तो सिर्फ पानी है, बट लेकिन कार्बोनेटेड जो बाकी ड्रिंक होते हैं, स्वीट ड्रिंक्स है ना, वो केक, शुगर, सीरियल, फ्रूट जूस है ना। फ्रूट जूस, मैं फ्रेश फ्रूट जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैक्ड आते हैं, उसका पैक पीछे पढ़ के देखिए तो आपको दिखेगा उसके अंदर कितना सारा शुगर ऐड है। तो बेसिकली ये जो अभी आपने देखा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है, तो कॉम्प्लेक्स के अभी आपने जब देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फायदे क्या हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को अच्छा करता है, आपके ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है या फिर लोअर कर सकता है, ओके। ये कैसे करता है इसको थोड़ा समझ जाइए तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से प्यार होने लग जाएगा। होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो फाइबर है, फाइबर में दो टाइप होते हैं, एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल फाइबर है वो आपके पेट से डाइजेस्ट होना चालू होता है। जब आपकी छोटी आंत में जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे वो क्या करता है पता है, वहाँ पे वो फैट को, शुगर को, जो भी ज़्यादा है, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा फैट और जो ज़्यादा जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इसको अपने में जकड़ लेता है, पकड़ लेता है और उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए मदद करता है। मतलब अपने गलती से अगर आपने खा भी लिया तो बाहर निकालने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के खाना चालू करो गलत चीज़ों को और बोलो गलती से खा लिया, नहीं। जो भी गया है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा और उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ये आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, तो लोअर करने में मदद करता है। इसी तरह से आपके हार्ट हेल्थ को भी मदद करता है कि जैसे कि मैंने कहा कि वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कोलेस्ट्रॉल को भी पकड़ना चालू करता है। कोलेस्ट्रॉल वैसे हम अपनी बॉडी में बनाते हैं, हमको बाहर से खाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम खा लेते हैं बहुत सारा, ओके। तो उसको भी पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बेनिफिट्स हैं। अब अगर ये देखा जाए कि हमें कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए, तो एक एजेंसी है AMDR जो कहती है कि अप्रोक्सीमेटली आपको 50% के आसपास आपके दिन भर के एनर्जी का परसेंटेज खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से, 50%। लेकिन हम करते क्या है, एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड तकरीबन 47% तो वैसे ही खा लेता है होल ग्रेन से, जबकि गांव में तो ये 70% है। इसके अलावा हम प्रोसेस फूड से ही बाकी सारे चीज खा लेते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 10%। तो ये और आपका बढ़ गया, 57 हो गया। जबकि ये गांव में है 10%, और जबकि अर्बन में अप्रोक्सीमेटली 30% हम प्रोसेस फूड से खा जाते हैं। ना इमेजिन करिए हम 77% खा रहे हैं, 50% की बात हो रही है, हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें कम खाना है, ओके। अब एक चीज और समझनी है आपको, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप समझ जाएं पहले। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, कि आपने जो भी चीज को खाया, वो खाने के बाद कितनी देर में आपके ब्लड में शुगर गया, वो जो टाइम है वो जितना फास्ट होगा, जितना जल्दी होगा, जितना कम होगा वो टाइम, उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा। इसका मतलब है कि आपने खाया
और तुरंत आपके बॉडी में अगर शुगर बढ़ गया, दैट इज बैड, है ना, क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल को फिर वो गड़बड़ कर देता है। इंसुलिन को पता नहीं चलता कि आपने क्या खा लिया, उसे कितना इंसुलिन रिलीज करना है, क्योंकि जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा, बस ही नहीं रहेगी, तो किस में बैठेगा, सेल तक जाने के लिए, शुगर नहीं बैठ सकता, तो ब्लड में घूमता रहता है। ओके, तो ये तो हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स कि कितने तेजी से ये ब्लड के अंदर शुगर रिलीज करता है, कौन सा फूड, तो अलग अलग फूड है जो अलग अलग स्पीड से रिलीज करते हैं। थोड़ा हम आगे बात करेंगे उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ। लेकिन एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड ये होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम पकड़िए आप, 100 ग्राम से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है कि हमने जो भी चीज़ खाई 100 ग्राम खाई तो हमारा ग्लाइसेमिक लोड कितना होगा। ग्लाइसेमिक लोड कितना होगा मतलब टोटल शुगर हम कितना खा रहे हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो रादर देन, जैसे मैं पहले बहुत डरता था वाटरमेलन से, जब तक मुझे पूरी बात जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखता था और वाटरमेलन को मैंने बाहर कर दिया था कि नहीं, वाटरमेलन नहीं खाना। लेकिन जब पता चला कि इसके अंदर ग्लाइसेमिक लोड तो बहुत कम है, तो मैंने खाना चालू कर दिया, और वजन कम करने में बहुत काम करता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जहाँ पर वाटरमेलन का 80 है, वहीं पर अगर ग्लाइसेमिक लोड देखेंगे 100 ग्राम का, तो हो जाता है सिर्फ 5, जो कि बहुत कम है। ये भी हाई और लो का लेवल हम आगे पता लगाएंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पर देखोगे आप कि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 0 से लेकर 55 तक इसको लो कहते हैं, 56 से 69 तक मीडियम कहते हैं, और 70 या 70 के ऊपर इसको हाई कहा जाता है। अगर आप देखेंगे जितना, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बोल दी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। ओके, जहाँ तक ग्लाइसेमिक लोड का सवाल है, 1 से लेकर 10 तक इसे लो कहा जाता है। ग्लाइसेमिक लोड का इंडेक्स अगर 11 से लेकर 19 है तो उसको मीडियम कहा जाता है, और हाई ग्लाइसेमिक लोड का इंडेक्स अगर 20 के ऊपर है तो उसे हाई कहा जाता है। आप वो दोनों पैरामीटर चेक कर सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा पैरामीटर है वो ग्लाइसेमिक लोड, अगर आपने एक क्वांटिटी उसी कंट्रोल में रख के खाई तो, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड, फिर वो भले ही वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, एक लिमिट तक वो ठीक है। अब इसको इस तरह से देखिए, ग्लाइसेमिक लोड वर्सेस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हाई ग्लाइसेमिक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डिफरेंस। दो फाउंटेन है ना, एक जगह आहिस्ता आहिस्ता पानी निकल रहा है, लेफ्ट वाले में देखोगे तो स्लो स्लो पानी निकल रहा है, और राइट वाले में बहुत तेजी से आ रहा है। तो जहाँ पर स्लो आ रहा है वहाँ पर क्या होगा, पानी आएगा, थोड़ा नीचे गिरेगा, जमीन में जाएगा, तो वहाँ पर हरियाली आस्ते आस्ते बढ़ेगी। लेकिन राइट साइड में देखिए, अगर जोर से आएगा तो वहाँ पानी जमा होते रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ कुछ पनपेगा नहीं, वहाँ पर कोई ग्रीनरी आपको नहीं दिखेगी, वहाँ पर तो तालाब जैसा ही दिखेगा आपको सिर्फ। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड इज मच बेटर। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, जो मैं आपको चार्ट की बात कर रहा था कि किस चीज में कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है। अगर आपको पता होगा कि हम किसको कम बोलते हैं किसको ज्यादा बोलते हैं, तो आपको अंदाजा होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे अच्छा माना जाता है। अब देखिए हम जो ज्यादा खाते हैं वो कितना है, चावल हम कितना खाते हैं, 73 है। ब्राउन राइस हम बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर बोलते हैं कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जो व्हाइट राइस के जगह ब्राउन राइस खाओ, लेकिन अगर वो भी आपने ज्यादा खाने लगा तो 68 है। होल व्हीट ब्रेड 69, व्हीट ब्रेड, मतलब हर चीज को देखिए आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और उसके सामने उसका ग्लाइसेमिक लोड देखिए। व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक लोड 17, ब्राउन राइस का 16, व्हाइट ब्रेड का 10, पोटैटो अगर बेक किया है तो 26। बेक्ड इसलिए लिखा है क्योंकि पोटैटो अगर आपने बॉईल करके खाया तो बहुत अच्छा होता है, बहुत कम हो जाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड। ओके, किनोवा 13, ओट्स मिल 13, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55। आप इसको देखिए, ऐसे आपको रेडी रेफरेंस के लिए तो आपको गूगल में सब कुछ मिल ही जाएगा, आप देख सकते हो कि किस चीज का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कितना ग्लाइसेमिक लोड है। और अब एक आपको बहुत मजे की चीज बताता हूँ, आप अगर राइस खाने के शौकीन है तो आप आ सकते हैं बीफ एच, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। यहां पर अगर आप देखोगे पुराने वाले स्लाइड में, व्हाइट राइस का 60, 73 और 68,
जो कि मिड और हाई रेंज में है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 52, जो कि लो के कैटेगरी में आ जाता है। अप टू 55 इट इज लो। लेकिन जैसे कि हमने बात करी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों की, अब ग्लाइसेमिक लोड इसका कितना है वो मैं आपको बताता हूं। ग्लाइसेमिक लोड आज जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो इसका आता है 12, ओनली 1 2 12। अब ब्राउन राइस का देखिए, ब्राउन राइस इज 16, मतलब ब्राउन राइस से भी काफी अच्छा बीफैच राइस है। क्विनोआ आज की डेट में बहुत उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, 13, जबकि यहाँ का अनाज है ही नहीं, इंपोर्ट होके आ रहा है। मैंने कहीं पर देखा वो 200-300 रुपए किलो है, कहीं पर वो 500 रुपए किलो भी मुझे दिखा क्विनोआ। ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो 13 बीफैच राइस का ओनली 12। इसके अलावा इसको आप बाकी चीजों से भी कंपेयर कर सकते हो। व्हाइट राइस 17, ब्राउन राइस 16 और ओट मिल 13, ये उससे भी कम है। तो ये रहा बीफैच राइस। आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये सैटिस्फैक्टरी लेवल कैसे मेंटेन करता है, आपको भूख भी जल्दी नहीं लगने देता। तो आपको कब खाना चाहिए, तो जैसे फरूक जी ने कहा कि जहां तक हो सके वो ज़्यादा अगर कार्ब खाना है तो सुबह खा लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आप उसको अच्छी तरह से मेटाबोलाइज कर लोगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि सुबह सुबह इंसुलिन लेवल भी अच्छा रहता है। अगर आपने बॉडी क्लॉक वाला सेशन हमारा सुना हो तो आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको ये स्लीपीनेस नहीं होने देता, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और वर्कलोड की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको भी कम करता है। ये आपके इंसुलिन रिस्पॉन्स को सुबह सुबह बढ़ा देता है, ये आपके कैलोरी को कंट्रोल कर लेता है और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को अच्छे यूज़ करके मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये आपके मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है, ये आपके अलर्टनेस को अच्छा करता है, ताकि आप, और जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्सिवनेस भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को एनर्जी अच्छे से मिल रही है। सुबह सुबह खाना चाहिए बॉडी क्लॉक के हिसाब से कार्ब्स को भी। अब आ जाते हैं हम अपने फाइबर पे। हमें फाइबर कितना खाना चाहिए? अगर हम देखेंगे तो मेंस और वुमेन्स में अलग अलग है, और किस तरह की हम अपनी लाइफ जी रहे हैं उसके ऊपर अलग है। अपने सेडेंट्री लाइफ है तो उसके लिए अलग है, और अगर हम हैवी वर्कआउट वाला काम कर रहे हैं या हैवी लोड वाला काम कर रहे हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ताकत ज़्यादा लग रही है, शारीरिक श्रम ज़्यादा लग रहा है, उसमें आपको ज़्यादा फाइबर खाना है। सेडेंट्री लाइफ अगर मैन की है तो 30, मॉडरेट अगर लाइफ अगर मैन की है तो 40, और आप ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो 50। ये आपके डाइटरी फाइबर का पर, ये ग्राम है, कितना ग्राम आपको पर डे खाना चाहिए। उसी तरह वुमेन्स के लिए 25, 30 और 40 है। ओके। अब फाइबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो इस तरह से सोल्यूबल मतलब जो घुल जाता है, इनसोल्यूबल मतलब जो नहीं घुलता है। तो पहले हम घुलने वाले बात कर समझ लेते हैं। पहले ही सेंटेंस में लिखा है डिजोल्व्स इन वाटर, वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है। क्योंकि घुल जाता है तो ये आपको पेट में घुलने के बाद फूल जाता है, बाकी चीजों को अपने साथ में लेके फुला देता है ये। तो जिसके वजह से क्या होता है, आपको भूख जल्दी नहीं लगती। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल पकड़ लेता है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। ये आपके गट फ्लोरा को बढ़ाता है। गट फ्लोरा को बढ़ाने का मतलब यह है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे गट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया हैं और कई तरह के बैक्टीरिया हैं। तो ये उन सबको मेंटेन करने के लिए काम करता है। ये आपका ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है। क्यों? मैंने आपको बताया कि ये एक्सेस शुगर जो रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पकड़ लेता है और फिर उसको बॉडी के बाहर फेंक देता है। ओके। आपको कहाँ मिल सकता है सॉल्युबल? ये है एप्पल्स में, बीन्स नट्स में, ओट मिल में, स्वीट पोटैटोज में और लेंटिन्स में, दाल वगैरह में। ओके। ये आपके बॉल मूवमेंट को भी
मेंटेन करने में मदद करता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए खाना है ये, है ना। तो फाइबर जो है हमारे अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाना है, जिसको हम प्रीबायोटिक बोलते हैं। ओके, अब आ जाता है इंसोल्युबल में। इंसोल्युबल जैसा कि आपको पता ही है कि शब्द ही बता रहा है कि पानी में नहीं घुलता। तो पानी में नहीं घुलता तो क्या होता है, ये पेट ये कुछ नहीं करता, ये आपके शरीर में झाड़ू का काम करता है। जिस तरह घर पे आपके झाड़ू करता है ना काम, कचरा साफ करने का, उस तरह से आपके बॉडी में करता है। तो इसलिए प्रोमोट्स लैक्सेशन। ओके, ये आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पर कुछ कचरा नहीं जमने देता। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, होल व्हीट में मिलेगा, और इसीलिए कहा जाता है होल व्हीट आटा खाया जाए, न कि मैदा खाया जाए। ओके, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, किनोवा है, ब्राउन राइस है, सीड्स है। मैं प्रमोट करूंगा लोकल फूड में आपको जो मिले वो सबसे बढ़िया है ना। किनोवा वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके बॉडी को, आपके जो स्टूल है उसको एक बल्कीनेस देता है, क्योंकि वो चीज़ खा रहे हो आप जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो सीधा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। और इसी तरह कहा जाता है कि आपके बॉल मूवमेंट को और बॉल हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कर सकते हो यूज न्यूट्रीलाइट का फाइबर। ये जो न्यूट्रीलाइट का फाइबर है, इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें डाली गई हैं, जिसके अलग अलग बेनिफिट हैं। एक है रेसिस्टेंट मेल्टोडेक्स्ट्रिन, दूसरा है इन्यूलिन, और तीसरा है गोअरगम। तीनों के अलग अलग फायदे हैं। मोटा मोटा ये है कि आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, आपका बॉल मूवमेंट को साफ रखते हैं। कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके अंदर अच्छे भी काम करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, लेकिन उनको भी रोकने का काम करता है, स्पेशली गोअरगम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो अच्छा भी काम करते हैं, बुरा भी करते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो बुरा काम करने से रोकने के लिए गोअरगम काम करता है। आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये सारे बेनिफिट जो हमने अभी तक पढ़ लिए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो तकलीफ क्या है लोगों को, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज को अगर आपने अपने कंट्रोल में ले लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ों को मदद करने के लिए तीनों पार्टिकल यूज़ करते हैं। जो रेसिस्टेंट मेटाबॉलिज्म है, ये बेसिकली मक्के से निकलता है। इन्यूलिन जो है बेसिकली आपका जो चिकोरी है, चिकोरी आपने सुना होगा, जो कॉफ़ी के साथ में चिकोरी मिक्स करते हैं, उसमें से निकलता है। ग्वारगम बेसिकली अपने गवार की फली होती है, जो एक क्लस्टर बीन बोलते हैं सब्जी। गवार गवार बहुत फेमस उसका नाम है, उसके बीज से निकलता है, उनसे बनाया गया फाइबर है ये। ऑल नेचुरल, नो प्रिजर्वेटिव, और जो इसके इंग्रेडिएंट भी हैं वो भी प्रिजर्वेटिव फ्री है। ओके, तो फाइबर आपके गट हेल्थ को किस तरह से बढ़ाता है? देखो, सबसे पहले तो मदद करता है कि जो आपके बॉडी के अंदर जितने अच्छे बैक्टीरिया उनको खाना दे, उसे खाना होता है। उसके बाद उस खाने का काम, खाने को तो खाना तो देता ही देता है, प्लस जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाता है। फाइबर आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। फाइबर एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अच्छे बैक्टीरिया उनके लिए खाना है। फाइबर जैसे कि आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बॉडी शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, आपके इन्फ्लेमेशन लेवल को कम करता है, और आपके हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करता है। डाइटरी फाइबर आपको बॉडी को साफ करने का काम करता है, जैसे कि मैंने बोला था झाड़ू, है ना, झाड़ू का काम करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं रहते हैं बहुत देर तक, टॉक्सिन्स को बॉडी के बाहर निकालता है। तो इस तरह से फाइबर आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है और आपके गट को इम्प्रूव करता है। सुबह सुबह क्यों खाना चाहिए अगेन फाइबर? तो देखिए, नेक्स्ट फूड इनटेक का टाइम दूर करता है, क्योंकि फाइबर आपके बॉडी को फुल रखता है बहुत देर तक, है ना, स्पेशली सोल्यूबल फाइबर, है ना, वो फुल जाता है बहुत देर तक, आस्ते आस्ते डाइजेस्ट होता है, आस्ते आस्ते डाइजेस्ट नहीं भी होता है तो बहुत देर तक आपको फुल रखता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है,
और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है ना। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या है? एक बार आपने खाना खाया, कितनी देर के बाद आपका पेट खाली होगा, उस पीरियड को जरा बड़ा कर देता है, ताकि आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगी, आप कुछ भी जल्दी जल्दी खाओगे नहीं, स्पेशली कचरा कुछ खाओगे नहीं। कचरा इन द सेंस की नॉन न्यूट्रिशनल फूड्स, वो आप खाओगे नहीं, जिसकी वजह से आपकी सेहत बिगड़ेगी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो, है ना, तो आप फूड स्वैप कर सकते हैं। फूड स्वैप मतलब अगर आप कुछ खा रहे हो, लेफ्ट साइड में है जो जिसको हम बोल देंगे नॉट सो गुड फूड, नॉट सो न्यूट्रिशियस फूड इनफैक्ट, और राइट वाला जो है जो आपको खाना चाहिए, जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा कंपेयर टू लेफ्ट वाले से। आलू पराठा की जगह पे आप पनीर, दाल या वेज पराठा खा सकते हो। ब्रेकफास्ट सीरियल की जगह पे आप दलिया वगैरह खा सकते हो। वाइट ब्रेड के जगह पे आप होल व्हीट ब्रेड खा सकते हो। लेकिन वड़ा पाव की जगह पे इडली सांभर खा सकते हो। व्हाइट राइस की जगह पे ब्राउन राइस खा सकते हो ना। ब्राउन राइस को मैं तो इनफैक्ट अभी बोलूंगा, ब्राउन राइस की जगह पे आप बिफैच राइस खा सकते हो। उसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों कम है। आइसक्रीम की जगह पे आप योगर्ट खा सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पे लाइम वाटर पी सकते हो। फ्रूट जूस की जगह पे होल फ्रूट खा सकते हो। और फ्रूट जूस के लिए तो सिंपल एक याद रखो, फ्रूट जूस सिर्फ मरीजों के लिए है, जो खा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए फ्रूट जूस है। ओके, बाकी अगर आप बीमार नहीं हो तो आपको फ्रूट, होल फ्रूट ही खाना चाहिए। फ्राइड चिकन फिश की जगह पे आप ग्रिल्ड, बॉइल्ड या रोस्ट कर सकते हो उनको। तो इस तरह से अगर आपने अपना फूड को स्वैप किया तो आप थोड़ा न्यूट्रिशियस और थोड़ा हेल्दी फूड की तरफ जा सकते हो। एक और चीज आप कर सकते हो, फूड पेयरिंग। आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड के साथ में प्रोटीन और फाइबर अगर आपने ऐड कर दिया तो वो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ा देता है और उसका इम्पैक्ट भी आपके शरीर पे बढ़ा देता है। आप होल ग्रेन और होल लेग्यूम्स को खाइए, है ना, राजमा या चने, छिलके वाले काबुली चने या ब्लैक चना जो भी है, उसको आप खाइए। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल को आप ऐड करिए। नॉन स्टार्ची मतलब जो जमीन के नीचे मिलते हैं बेसिकली, जिसके अंदर आलू हो गया, फिर सूरन हो गया, या फिर तुम्हारे शकरकंदी हो गई, है ना। इन चीज़ों की जगह पे आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल खाइए। लो जीआई और लो जीएल, ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम है, उस पर आप शिफ्ट हो जाइए। और माइंडफुल कुकिंग टेक्निक को यूज़ करिए ना। अभी मुझे पता नहीं कितने लोगों को माइंडफुल कुकिंग टेक्निक पता है। माइंडफुल कुकिंग टेक्निक मतलब ये है कि आप फ्रेश वेजिटेबल लाएं। आप पहले से प्लान करके रखें कि आपको किस दिन क्या खाना है। आप वो वेजिटेबल लाएं या वो चीज़ लाएं, अच्छे से धोएं, पकाएं उतना ही जितना क्रंची आप खा सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपके खाने का न्यूट्रिशंस, बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो हीट पे मर जाते हैं, वो नहीं मरे। ओके, आप उसको क्रंची रख के पकाएं। आप उसको उतना ही गलाएं जितना आपको करना है। गर्मा गर्म खाएं, तेल कम यूज करें। ये माइंडफुल कुकिंग टेक्निक्स हैं। ध्यान से पकाएं। ध्यान से पकाने का मतलब है कि उसको जलाएं नहीं बहुत ज़्यादा गलाएं नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका खाना ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो सकता है। फाइबर इंटेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फाइबर इंटेक करने के लिए आप होल ग्रेन्स को यूज़ करिए रादर देन रिफाइंड ग्रेन्स। ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट खाइए, नट, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाइए। ओके, बीन्स, लेंटिल्स, पीस, ये सब, इनका सूप और सलाद, इसको यूज़ करिए। आपके दही में, सीरियल्स में आप थोड़े अपने ओट्स ब्रांड को मिक्स कर लीजिए, या फिर अपने स्मूदीज में उसको मिक्स कर लीजिए। पानी खूब पीजिएगा ना। पानी के ऊपर भी हम चैप्टर देते ही हैं, लेसन देते ही हैं। अगर आप आते होंगे तो आपको उसमें पता होगा कि कितना कितना पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और सबसे बढ़िया, शाइन करना चाहिए। शाइन मतलब ये कि आप हर दिन को आप भगवान को शुक्रिया अदा करके शुरुआत करें और अपने न्यूट्रिशियस फूड को खाएं। अपने इंटेंशन क्लियर रखें, तन, मन और धन वाला तीनों, कि हमें कहाँ पहुंचना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ नई चीज़ सीखने की ज़रूरत हो तो वो सीखिएगा। और कभी भी एक्सरसाइज करना बंद मत करिएगा। एक्सरसाइज डेली।
Thank you very much. Over to you, Ruchita. Thanks. थैंक यू सो मच मनोज. आई थिंक सबको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया कि कार्ब्स की इम्पोर्टेंस क्या है एंड कितने कितने प्रोपोर्शन में लेना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Since I don't see any other questions, guys, our next session will be on Monday, which is 14th. So till then, goodbye, stay safe, and see you in the next session, which will be on Monday, 14th of July. Thank you all. Good night.